السلام علیکم ممبرس لکھاری آن لائن میگزین میں ہم لوگ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ میگزین ایک پہلے PDF کی صورت میں آپ لوگوں کو پہنچایا جاتا تھا۔ اب ہم لوگ اس کو لے کر یوٹیوب پہ شفٹ ہو گئے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر۔ تو ہمارے اس میگزین کو کچھ اگر لوگ بائی بھی کرنا چاہیں تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ ان کو ہم سے بائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے، یا ہمارے دیے گئے انسٹا کی جو IDs ہیں اس کے اندر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہمارا لکھاری میگزین، اس میں شائع ہونے والے ناولز رائٹرز کی اجازت کے ساتھ ہم لوگ پوسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناولز کہیں پہ بھی نظر آئیں، یوٹیوب چینل، فیس بک پر یا کہیں پر بھی، اس کی اسکرین شاٹ ہمیں بنا کر ضرور بھیجیں، ہمیں ان باکس میں رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ ان سے اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لے سکیں۔ سنگ شکن امیر حسن کے قلم سے ماخوذ ایک بہت ہی اچھی کہانی ہے جو بدلے کی بنیاد پر ہے، اور زیادہ نہیں بتاؤں گی، بس اتنا ہی بتاؤں گی کہ کچھ لوگوں کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے بہت سے روپ بدلنے پڑتے ہیں، تبھی آپ ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہت سی کیا کہنا چاہیے، بہت سے بھیس بدلنے پڑتے ہیں، پھر کبھی دل کی بھی بات آ جاتی ہے۔ تو پچھلی قسط میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ سنگ شکن کی ایپیسوڈ 11 کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی قسط کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ لیو نے رفایہ میم کو کڈنیپ کر لیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے کڈنیپ کیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی کم نہیں تھی، تو ابھی جو ہے وہ اس کو پھر اس نے جانے دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ محبت آج بھی اس سے کرتا ہے، اور اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہے، کس طریقے سے اب لے کر چلتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے رفایہ ایک ایسی سیڑھی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اس سیڑھی کے طور پر استعمال نہیں کرتا، وہ اس کو اپنی محبت کی آغوش میں دینا چاہتا ہے اور اسے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ کہہ لو کہ جس دلدل سے وہ تعلق رکھتی ہے، جیسے تو اس کو وہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کی ایپیسوڈ نمبر 11، آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ سر وہ ساری لڑکیاں ہماری دوست ہیں، ان میں سے ایک اجاز کی منگیتر سعدیہ ہے، 3 لڑکیاں سعدیہ کی فرینڈز اور 2 لڑکیاں دبئی کی ہیں، حرمین رضا اور رفایہ مہاب۔ رفایہ میری بہت اچھی دوست ہے اور حرم اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، ہم لندن میں ساتھ ساتھ پڑھے تھے۔ منیب دوبارہ سے بولا تھا۔ 2 لڑکیاں دبئی کی ہیں؟ انٹرسٹنگ۔ تو کیا نام بتایا تم نے ان لڑکیوں کا؟ ہاں، حرمین رضا اور رفایہ مہاب۔ تو رفایہ مہاب اور حرمین رضا دبئی سے یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت بتاؤ، اور یہ کہ یہ لڑکیوں کو پاکستان کیوں آئی ہیں؟ وہ جانچتی نظروں سے ان سب کے چہروں کو بغور دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ سر میں بتاتا ہوں، منیب، عامر اور وقار میرے پاپا کے فرینڈس کے بیٹے ہیں، بلال وقار کا کزن اور فرینڈ ہے۔ منیب کی لندن سے واپسی کے بعد ہم سب مل کر دبئی گھومنے گئے تھے، وہی منیب ہم سب کو رفایہ سے ملانے اس کے گھر لے گیا تھا، تب سے یہ عامر، وقار اور بلال حرم اور روفی کے پیچھے پڑے ہیں، خاص کر کے یہ عامر اور وقار۔ عامر تو خود کو رفایہ کا بہت بڑا عاشق مانتا ہے۔ وقار حرم کو بہت پسند کرتا ہے، یہی دونوں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح وہ دونوں یہاں آ جائیں تاکہ ان کے ساتھ بلال بھی رفایہ اور حرم کے ساتھ رنگین وقت گزار سکے۔ دبئی میں بھی ان لوگوں نے رفایہ اور حرم کے ساتھ فلرٹ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر رفایہ کے رویے کے علاوہ ان کے ڈیڈ کی وجہ سے ایسا پاسبل نہیں ہو سکا۔ میں نے اور منیم نے ان کو بہت سمجھایا کہ رفایہ اور حرم کا خیال دل سے نکال دیں، خاص کر رفایہ کا، وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک شخص کی اولاد ہے، مگر ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود نہ انہوں نے ہماری بات مانی اور نہ ہی ان دونوں لڑکیوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہوئے۔ ان لوگوں نے ہی منیب کو فورس کیا تھا کہ میں اور حرم رفایہ کو اپنی بہن زرمین کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے یہاں پہ بلائیں۔
ताकि ये इनके साथ पूरी तरह एन्जॉय कर सके। मगर यहाँ भी रूफ़ी के बॉडीगार्ड्स ने इन तीनों की कोशिश को नाकाम बना दिया। एजाज अपने लेफ्ट साइड बैठे आमिर, बिलाल और वक़ार को देखते हुए बोला, जबकि इसकी ज़ुबानी सारी सच्चाई सुनकर इस खूबसूरत से शख्स और उसके पीछे खड़े बंदे का भी चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इनका खून खौल उठा था। तभी उस शख्स के इशारा करते ही सुहेब, काशिफ और मुजम्मिल ने आमिर समेत वक़ार और बिलाल के मुँह पर एक के बाद एक थप्पड़ इतने ज़ोरदार तरीके से मारे थे कि तीनों ऊँची-ऊँची आवाज़ में बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोने लगे थे। सर प्लीज़ हमें मत मारें, सारा इल्ज़ाम हम पर लगाकर ये खुद बचना चाह रहा है। इस एजाज़ ने जो कुछ आपको बताया वो आधा सच है, पूरा सच मैं आपको बताता हूँ। सर ये एजाज़ हमें फँसाकर मुनीब को बचा रहा है। एजाज़ समेत इसके पास बैठा ये मुनीब आलम दोनों बहुत बड़े कमीने हैं। सर ये मुनीब ये एक हमजिन्स शख्स है। ये मेरे कज़न से प्यार करता है। इसने मुझसे कहा था कि रुफ़ाया और हरम को यहाँ तभी बुलाएगा जब बदले में उसे मैं अपने कज़न माजिद के साथ वक़्त गुज़ारने का मौका दूँगा। और इस एजाज़ ने वक़ार से कहा था कि हरम के साथ वक़्त गुज़ार कर इसे इस कमीने के हवाले कर दूँगा, क्योंकि रुफ़ाया के बाप की वज़ह से इसके साथ कुछ भी ऐसा-वैसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसलिए रुफ़ाया के मुकाबले इसलिए लिए हरम आसान शिकार थी। इन दोनों को दुबई से यहाँ बुलाने में मैं दोनों का भी मफ़ाद शामिल था। आमिर ने दर्द से कराहते हुए जो कुछ बताया उसे सुनकर इस खूबसूरत शख्स के पीछे खड़ा लड़का भड़क कर आगे आया था और उसने पे दर पे इजाज़ के मुंह पर न जाने कितने थप्पड़ मारे थे, जबकि वह हसीन और वजीज सा शख्स जब से जबड़े भींचे बैठा था। बस वापस आ जाओ। उस शख्स के आवाज़ देते ही वो लड़का जब से मुठियां भींचे दोबारा वापस मुड़कर अपनी जगह पर चला आया था। ये झूठ बोल रहा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। माजिद मेरा दोस्त है बस, और रुफ़ाया यहाँ शादी में शिरकत के बजाय अपने डैड से बचकर आई है। अपने पास बैठे इजाज़ की हालत को फटी-फटी आँखों से देखते हुए मुनीब खौफज़दा लहजे में बोला था, और उसकी आखिरी बात पर सामने बैठा शख्स सपाट नज़रों से उसे देखने लगा था। अपने डैड से बचकर क्यों? इस खूबसूरत से शख्स ने सपाट लहजे में पूछा था। वो वो रुफ़ाया के डैड उसकी शादी अपने बिज़नेस पार्टनर जमाल नजमी से करना चाहते हैं, जिसे रुफ़ाया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो ना सिर्फ़ उम्र में रुफ़ाया के डैड के बराबर है, बल्कि नहायत बदशक्ल भी है, और रुफ़ाया को बदशक्ल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी मसले पर उसकी अपने डैड से तकरार चल रही है। वो इस शादी के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तभी इनसे बचकर रूफ़ी मेरे इनवाइट करने पर पाकिस्तान आई है, ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। मुनीब की आखिरी बात सामने बैठे शख्स के लिए वाक़ई शॉकिंग थी। तभी वो दिलकश से अंदाज़ में मुस्कुराया था और कुर्सी की बैक से पुश लगाकर रिलैक्स होकर बैठ गया था। हुँ, तो तुम रुफ़ाया महब के फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड? महज़ूज़ सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए इस हसीन और जमील शख्स ने मुनीब से पूछा था। मुनीब के पास खड़े काशिफ़ ने भी उसके सर पर गन अपनी रख दी थी। बेस्ट फ्रेंड, वो और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हरम के बाद रुफ़ाया मुझे अपना बहुत करीबी दोस्त मानती है। अपने पास मौजूद काशिफ और उसकी गन को देखते हुए मुनीब घबराते हुए दोबारा बोला था। हाँ सही कह रहा है, ये किसी भी लड़की को बस दोस्त ही बनाकर रख सकता है, क्योंकि और कोई ताल्लुक बनाने के काबिल तो नहीं है। रुफ़ाया उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, तभी वो इससे इतना चिढ़ती है कि इसे बात बात पर झिड़क कर रख देती है। शर्मिंदा होती है बेचारी इस बात पे कि इसका बेस्ट फ्रेंड गे है, शक्ल से मर्द और करतूतों से औरत। पिटाई के बाद भी आमिर की ज़ुबान को चैन नहीं आया था। तभी वो मुनीब को देखकर तंज़िया अंदाज़ में मुस्कुराते हुए बोला था। मगर मुनीब इसकी बात का जवाब देता, इससे पहले ही आमिर के पास खड़े सुहेब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ दोबारा से आमिर के मुँह पर मारा था। जिससे जितना पूछा जाए सिर्फ़ इतना ही जवाब दो। सुहेब, काशिफ़, मुज़म्मिल, मुनीब आलम के सिवा इन चारों को दूसरे रूम में ले जाओ, और मेरी तरफ से मोहतरम एजाज़, आमिर, वक़ार साहब को थोड़ी-सी बहुत मेहमान नवाज़ी ज़रूर कराना। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनका क्या करना है। खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान बोला था, और उसके ऑर्डर पे इन चारों लड़कों को वहाँ से ले जाया गया था। इनके जाने के बाद वो खूबसूरत शख्स अपने सामने बैठे मुनीब आलम की तरफ मुतवज्जो हुआ था। हाँ तो मुनीब आलम, बकौल तुम्हारे रुफ़ाया महाब यहाँ अपने मसले का हल तलाश करने आई हैं। कोई हल निकला इनके मसले का? वो शख्स अपने सामने बैठे मुनीब से मुखातिब हुआ। ना, नहीं सर, अभी परसों ही तो आई है, और अब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला। मुनीब ने झिझकते हुए जवाब दिया, जबकि इसके सामने बैठा हुआ शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी घसीटते हुए ऐन मुनीब के सामने चला आया। फिर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था। मेरे पास रुफ़ाया महाब के मसले का एक हल मौजूद है, जो तुम इन तक पहुँचाओगे। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। वो शख्स मुनीर की तरफ
झुक कर धीरे-धीरे उसे कुछ समझाने लगा था, जिसे मुनीब बहुत ध्यान से सुनने लगा था। ये कराची की मशहूर प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जहाँ इस वक्त फ्री क्लास के दौरान फिजिक्स डिपार्टमेंट के ग्राउंड में स्टूडेंट्स खासी फुर्सत में बैठे एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल थे। ग्राउंड में दाएं तरफ के एक पेड़ के नीचे बैठे बेंच पर बैठा वो कश्मीरी लड़का ग्राउंड के बाएं तरफ खड़े पांच औबाश किस्म के लड़कों की निगाहों की जद पर था। वो पांचों से इस तरह घूर रहे थे जैसे बाज अपने शिकार को घूरता है। क्या कहते तुम? ये शार जैसे हसीन लड़के की जगह ये इस यूनिवर्सिटी में है, ये रशीद ख्वाजा के शीश महल में। इन 5 में से एक लड़का जिसका नाम नदीम था, यशार को अजीब-सी नज़रों से देखता हुआ बोला, यकीनन यशार की इस बेपनाह खूबसूरती को देखने से अगर शीश महल और ख्वाजा महरूम रहे तो ये यशार की खूबसूरती के साथ नाइंसाफ़ी होगी। एक दूसरा लड़का भी जिसका नाम फराज था, अपनी आँखें यशार के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर टिकाते हुए बोला, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी टूर शुमाली इलाका जा रहा है। उसी दिन बाकी स्टूडेंट्स को तो जाएँगे घूमने और यशार को हम ले जाएँगे शीश महल की सैर करवाने। सोच ख्वाजा इतने खूबसूरत लड़के को देखकर कितना खुश होगा और फिर हमारे भी ऐश हो जाएंगे। अदनान ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था। लेकिन यार, क्या शीश महल जाने के बाद ख्वाजा हमें हमारा हिस्सा देगा? ये इशार इतना खूबसूरत लड़का है, मेरी तो इस पर से अभी नीयत खराब हो रही है। पहले इसे अपना दिल बना कर खुद को खुश करेंगे, इसके बाद इसे ये इशार महल लेकर जाएंगे। वैसे भी बहुत दिन हुए हैं कोई नया जायका चखे हुए। ख्वाजा के पास लेके जाने से पहले हम कुछ दिन उसे अपने पास रखेंगे, फिर ख्वाजा को देंगे। हमारे ऐश भी हो जाएंगी और जेबें भी भरेंगी। नदीम दोबारा बोला था, वेट वेट, अगर इसे कुछ दिन अपने साथ रखा तो फिर पैसे भूल जाओ। ख्वाजा हमें इस इस्तेमालशुदा लड़की का एक ढीला भी नहीं देगा। ख्वाजा को हमेशा ऐसे अनटच चिकने खूबसूरत लड़कों की ज़रूरत होती है। इसी तरह के माल से ही तो इसका धंधा चलता है, क्योंकि इन नए खूबसूरत फ्रेश लड़कों को वो अपने मुल्क में नहीं रखता, बल्कि इन्हें बाहर सप्लाई करता है। सोच, ऐसे फ्रेश पीस को जब हम ख्वाजा के देंगे तो इसकी कीमत भी हमें हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा मिलेगी। अरशद नाम का चौथा लड़का भी बोल उठा था, मगर जो कुछ भी करना है वो सोच समझ कर करना है, क्योंकि हसनात, शाहिद और मोहसिन वाला मामला अभी तक दबा नहीं है। इन तीनों को जिस सफाई से उठाया था उसी सफाई के साथ इशार को भी उठाना है, ताकि कल अपना काम भी हो जाए और हम किसी की नज़र में भी ना आए। फराज दोबारा बोला था, डोंट वरी डूड, पिछली बार की तरह इस बार भी अपना खुशबूदार इत्र काम आएगा। 2 से 3 घंटे तो इनके फरिश्तों को भी होश नहीं आएगा। नदीम ने कहा था। वो पांचों आखिरी नजर इशार पर डालकर वहां से चले गए थे। वो सरशार से अंदाज में गुनगुनाते हुए बाथरूम से बाहर आया था और एक नज़र सामने बेड पर दराज इस मखरूर हसीना पर डाली थी, जो न जाने कब तक जागने का इरादा रखती थी। वो इसके साकत पड़े वजूद को मुस्कुराती नरम निगाहों से देखते हुए सीटी पर शौक से धुन बजाता बेड की जानब बढ़ गया था। इसकी निगाहों के सामने रात के खूबसूरत मनाजिर एक के बाद एक करके घूमने लगे थे, जब इस मगरूर हसीना ने इसके सामने पसपा होकर हथियार डाल दिए थे। इसका गुस्सा, बरहमी, चीखो पुकार आखिर में आकर शदीद बेबसी में ढलने के बाद आंसू में बदल गई थी, और अपनी रूफी जान के एक एक आंसू को चुनकर रुफाया पर अपनी मोहब्बतों की बारिश कर दी थी उसने। उसकी जुनून खीसी भरी शिद्दतों के आगे बेबस होकर रुफाया ने आखिरकार अपना आप उसे सौंप दिया था। ये वो किसी अजीम फातह की तरह फतह से हमकनार हुआ था। तभी इस वक्त नहायत सरशार सा था। मुस्कुराहट मुसलसल उसके लबों पर रक्स कर रही थी। इसने बेड पर दराज कंफर्टर में छुपी रुफाया के ऊपर से धीरे से कंफर्टर खींचकर हटाया था। रूफी जान, कब तक आराम करने का इरादा है? मेरा ख्याल है आपको आराम करते हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। जल्दी से उठें, आपको आपके ससुराल में भेजना है मुझे अभी। आपका वो गधा देवर आपको लेने आता होगा। इसके सामने सुलगे में जाएंगी। वो बेड पर बैठते हुए रुफाया के ऊपर झुक गया था और एक हाथ से इसके बालों को पीछे करता हुआ मुस्कुराकर बोला था। मायने खीस नजरें इसकी खूबसूरत राशिदा स्लीवलेस नाइटी में कैद वजूद पर टिकी थी, जबकि अपने चेहरे पर इसके ठंडे हाथ महसूस होते ही रुफाया ने अपने दर्द से बोझल सुर्ख पड़ती आंखें खोलते हुए इस बदतमीज शख्स को घूर कर देखा था, जिसकी बहकी हुई सुरमई निगाहें इसके चेहरे और वजूद पर टिकी थीं। रुफाया ने उसे पीछे धकेलते हुए दोबारा कंफर्टर ओढ़कर खुद को इसमें छुपा लिया था। वैसे कुछ दूर बेड पर दराज होकर मजे से मुस्कुराते हुए इनकी इसकी एहतियाती तदाबीर को देखने लगा था। कौन हो तुम? रुफ़ाया दर्द से टूटते वजूद के साथ उठकर बैठते हुए इस बेहसीन ग्रीन आंखों वाले शख्स से पूछने लगी थी, जो इसकी बात सुनकर इतना महसूस हुआ था कि बेसाख्ता कहका लगाते हुए बिस्तर पर ही लोट-पोट होने लगा था। हँसते-हँसते इसका बेतहाशा सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि रुफ़ाया उसकी ढिठाई वाली हँसी पर घूरने लगी थी। उसने बमुश्किल अपनी हँसी को कंट्रोल करते हुए एक नज़र खुद को बरहमी से घूरती रुफ़ाया पर डाली।
साथी लम्ब खींचकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए खिसक कर आगे आया था और रुफाया के पास ही दराज हो गया था। मैं ड्रैकुला हूँ, इंसान का रूप लेकर आपका खून पीने आया हूँ। वो मज़े से मुस्कुरा के उसके बरहम चेहरे को देखता हुआ बोला, हो भी सकता है। तुम जैसे बेरोपिया के न जाने कितने रूप हैं। अब तक मुझे धोखा देते आए हो, मगर अब मैं तुम्हारे हाथों मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनूँगी। मुझे मेरे सवाल का सीधा-सा जवाब दो। कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरे पास अब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मौजूद हैं। इसमें साफ-साफ लिखा है कि जब मैं चाहूँ तुमसे अलग हो सकती हूँ और अब मैं तुमसे अलग होने में लम्हा नहीं लगाऊँगी। बहुत जल्द तुमसे खुला ले लूँगी। तुम जैसे धोखेबाज़ के साथ मुझे मज़ीद नहीं रहना है। जो वो बरहमी से चटक कर बोल रही थी कि तभी ये शब्द एक ही जिस्म रुफ़ाया पर झपटता था और उसके खिले खूबसूरत सिल्की बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़कर ज़ोर से खींचते हुए उसने इतना ज़ोरदार झटका दिया था कि वो बेसाख्ता चिल्ला उठी थी। उसे लगा था जैसे खाल समेत उसके बाल जड़ों से उखड़कर निकल आए हों। क्या कहा? दोबारा से कहें ज़रा। किससे खुला लेंगी आप? उफ़! रूफ़ी जान क्यों अपनी इस नन्ही सी जान पर इतना ज़ुल्म कर रही हैं? अभी तो आपके पिछले खातों का हिसाब ही क्लियर नहीं हुआ और आप नई गुस्ताखियाँ भी साथ-साथ जमा करवा रही हैं। आप जानती हैं ये अब बोलकर आप मज़ीद गुनाहों की मर्तकब हो रही हैं। आपको पता ही होगा कि गुनाहों की माफ़ी बिना सज़ा पाए आसानी से नहीं मिलती। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरी दी हुई सज़ाओं को झेल सके? देखिए ना, अभी तक आप रात के ही खौफ से बाहर नहीं निकल सकी। इसके बावजूद फिर से एक बार फिर मुझसे बदतमीज़ी करने की गलती कर रही हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि शौहर से बदतमीज़ी नहीं की जाती है। किस कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हैं आप? बहुत शदीद किस्म की गलतफ़हमी में मुब्तला हैं आप कि एक कागज़ का टुकड़ा मुझे आपसे अलग कर सकता है। आप मेरी बीवी हैं, इसलिए अपने नन्हे से ज़हन से ये ख़्याल हमेशा के लिए निकाल दें कि आप मुझसे कभी अलग हो सकेंगी। पहले भी आपको कभी खुद से दूर नहीं होने देता, मगर कल आपके साथ गुज़ारी एक हसीन रात के बाद तो मेरे लिए ऐसा तसव्वुर करना भी नामुमकिनात में से है। इस वक़्त तो मैं आपको कल रात के इन खूबसूरत पलों के सदके बिना कोई सज़ा दिए छोड़ रहा हूँ। मगर आइंदा अलैदगी का लफ्ज़ आपकी ज़ुबान पर भी आया तो आपकी इस नातवा जान को बहुत से अज़ाबों से गुज़रना पड़ेगा। इसलिए अपने आप पर थोड़ा-सा रहम खाएँ मेरी जान। वो इसके बालों को एक के बाद एक झटके देते हुए इसके कान पर झुका बोला नहीं, सर्द आवाज़ में फनकारा था। उसने अपने एक हाथ की आहनी गिरफ्त में रुफ़ाया को दबोच रखा था और दूसरे हाथ से उसके बालों को मज़बूती से पकड़ा हुआ था, जबकि रुफ़ाया एक बार फिर रात की तरह सख्त बेबसी महसूस करते हुए दर्द से मचलती हुई शिद्दतों से रोने लगी थी। तभी उसने रूफ़ी के बाल छोड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए निहायत नरमी से इसके आंसू साफ़ किए थे। अचानक वो आग बरसाती कहर भरी नज़रें नर्म-गरम रोशनी से भर गई थीं। रात से यही हो रहा था। वो जानबूझकर इसे शदीद तकलीफ़ से दो-चार करने के बाद ऐसे ही उसकी अश्कशुई कर रहा था। पल-पल रंग बदलता वो शख़्स रात से अब तक रुफ़ाया के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हुआ था। दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी रूफ़ी जान, मगर मैं क्या करूँ? आपने बात ही ऐसी की थी कि ना चाहते हुए भी मुझे अपने अंदाज़ में आपको समझाना पड़ा। वो एक बार फिर नरमी से बोला था, मगर वो बस सर झुकाए खामोशी से बैठी थी। रात की तरह भी ये शब की ज़रा-सी बढ़ती गई सख्ती के बाद वो बिल्कुल चुप हो गई थी। रुफ़ाया की ये खामोशी और शराफ़त न जाने क्यों उसे बार-बार मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। वो रात से उसके ज़रा से बिफरने पर खौफ़ज़दा होकर खामोश हुई जा रही थी। वो रूफ़ी के झुके सर को देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया था। क्या हुआ रुफ़ाया मैम? इतनी ढेर सारी बदतमीज़ी और गुस्ताखियों गुस्ताखियों के बाद आप अपने इस अदना ख़ादिम के पैरों को नहीं कुचलेंगी? वो रुफ़ाया पर एक के बाद एक वार किए जा रहा था। तभी रुफ़ाया ने सर उठाकर ज़ख्मी नज़रों से उसे देखते हुए अपना रुख़ मोड़ लिया था। इस बार भी उसने बोलने की गलती कतई नहीं की थी, क्योंकि वो कल रात से ये बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि ये शख़्स इससे ज़्यादा ज़ोरावर था, जो लम्हों में उसे ज़ेर करने की ताकत रखता था। तभी वो खामोशी से बैठी हुई थी और इसकी ये खामोशी भरी बेबसी देखकर वो महज़ूज़ हुए जा रहा था। लगता है हमारी रूफ़ी जान कल रात के बाद से बेज़ुबान हो गई हैं या फिर हमसे नाराज़ होंगी। मेरे ख़्याल में दूसरी बात ज़्यादा ठीक है। अच्छा चलिए पूछें, आप क्या पूछना चाहती हैं इस अदना ख़ादिम से? यही ना कि मैं कौन हूँ? मैं आपका प्यारा-सा शौहर यानी ये शबज़नान बट हूँ। चाहे तो आप मुझे अपना ख़ादिम हदीद नासिर भी समझ सकती हैं या दुनिया वालों की तरह मुझे लियो कहकर भी बुला सकती हैं। ये आपकी चॉइस पर है, मगर एक बात याद रखिएगा,
यशब हो, हदीद हो या लियो, तीनों ही आपके सच्चे आशिक हैं और आपको टूट कर चाहते हैं। उसने बेड पर अपने पास बैठे रुफ़ाया को अपनी तरफ खींच लिया था। वो सीधी उसके ऊपर आ गिरी थी और हरासा नज़रों से उसे देखने लगी थी। मुझे अल-हयात जाना है। डैड रात से मेरी गुमशुदगी की वज़ह से परेशान हो रहे होंगे। न जाने कितनी ही देर बाद वो येशब की शिद्दत से घबरा कर बोल उठी थी। आप एक शादीशुदा लड़की हैं और इस वक़्त अपने शौहर के साथ हैं रूफ़ी जान। शादी के बाद हर लड़की अपनी ससुराल में ही रहती है, बाप के घर नहीं। इसलिए आपके डैड का फ़िक्रमंद होना बनता नहीं है। वैसे भी आपके डैड परेशान होने वाले नहीं, बल्कि परेशान करने वाली शय हैं। अब तो बहुत जल्द अब इन्हें अपनी जान के लाले पड़ने वाले हैं। वो रुफ़ाया के खुले बालों में उँगलियाँ जला चलाता हुआ आराम से बोला, मगर इसकी बात सुनकर रुफ़ाया एक झटके से अपनी जगह से उठ बैठी थी। क्या करने वाले हो तुम मेरे डैड के साथ? बताओ मुझे। कल रात भी तुम कह रहे थे कि मेरे डैड क्रिमिनल है और अब फिर तुम बताओ क्या किया मेरे डैड ने? वो फिर एक बार सब कुछ भला येशब के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए चीख कर बोली थी, मगर इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए येशब ने साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया था और उसे फ्लाइट मोड से हटा दिया था। और तभी कुछ सेकंड्स बाद उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगी थी। हाँ, तुम आ जाओ, तुम्हारी भाभी भी अपने ससुराल जाने को बहुत बेचैन है। चची जान से कहो कि तैयारी कर रखें, मेरी बीवी पहली बार अपने घर आ रही है और मेरी रूफी जान का स्टे ऊपर इनके और दानी वाले फ्लोर पर ही होगा। ये अमल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। वो अपने सामने परेशान चेहरा लिए बैठी रूफी को देखते हुए मुस्कुराकर बोला था, फिर फ़ोन बंद कर दिया था। चलें जल्दी से तैयार हो जाएँ, आपको लेने आपका देवर आ रहा है। वो अपनी जगह से उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ते हुए बोला, मगर रुफ़ाया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। रूफी जान, मुझे अपनी बातों को दोहराने की आदत नहीं है। आपको मैंने रात को मना कर दिया था कि आप अब अलहयात नहीं जाएँगी। तो यूँ ज़िद दिखाकर मुझे गुस्सा दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें उठें और तैयार हो जाएँ, या फिर आपके साथ बाथरूम जाने की ज़हमत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। वो साकत बैठी रुफ़ाया की तरफ एक खूबसूरत सा ड्रेस बढ़ाता हुआ बोला था और रुफ़ाया ने उसकी बदतमीज़ी पर एक बार फिर उसे घूर कर देखा था। मगर क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं अपने घर? तुम होते कौन हो मुझ पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाने वाले? मत भूलो कि मेरी तुम्हारी शादी किस मकसद के तहत हुई थी। हमने तय किया था कि मगर तुम सब सब बातों से मुकर मर रहे हो। वो एक बार फिर एहतजाजन बोली थी। उसने भी थोड़ी देर पहले के तल्ख़ तजुर्बे के सबक लेते हुए इस बार लफ़्ज़ अलहदगी इस्तेमाल नहीं किया था। क्या तय हुआ था हमारे बीच? इस वक़्त आपने जो चाहे सोचा हो, मगर मैंने जब निकाहनामे पर साइन किए थे, तो अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर खुली दिली अमादगी और रज़ा से आपको अपनाया था। साफ़ नीयत से इस ताल्लुक को जोड़ा था। मैंने ना इसमें किसी शर्त का सोचा था और ना ही मेरे दिमाग में कहीं पे भी ये बात मौजूद थी कि मैं आपको ज़िंदगी में कभी छोड़ूँगा। हमारे यहाँ अगर एक बार लड़की को अपनी इज़्ज़त जब बनाया जाता है, तो उससे निकाह जैसा मुक़द्दस बंधन जोड़ा जाता है, तो ज़िंदगी भर इस ताल्लुक को निभाया भी जाता है और ना ही हमारे ख़ानदान में तलाक़ें होती हैं। हम इतनी बेग़ैरत नहीं हैं कि अपने जीते जी अपनी इज़्ज़त और ग़ैरत का सौदा करते हुए अपनी बीवियों को तलाक देकर किसी दूसरे मर्द के लिए छोड़ दें। वो जारहाना अंदाज़ में रुफ़ाया का बाजू थाम कर उठाता हुआ बोला। रुफ़ाया एक बार फिर उसे गुस्से में देखकर दिल ही दिल में खौफ़ज़दा हुई थी, तभी खामोशी से उसके हाथ से ड्रेस झपटते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। वो इसको बाथ की तरफ बढ़ते हुए देखकर खुद भी मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा था और पूरे 10 मिनट बाद वो नहाकर यशब के लाए हुए खूबसूरत बेबी पिंक और पर्पल कलर के ड्रेस में बाथरूम से बाहर आई थी। यशब ने पलटकर उसे देखा और बेख्तियार मुस्कुराने लगा था। वो अंदाज़े से इसके लिए ये सूट लाया गया था, मगर वो रुफ़ाया को इस तरह फिट आया था जैसे इसी की नाप लेकर बनाया गया हो। खूबसूरत लॉन्ग बेबी पिंक कमीज़ पर गहरे पर्पल कलर का ट्राउज़र और बड़ा-सा पर्पल दुपट्टा जिस पर पिंक कलर की रेशम से खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई थी और किनारों पर शर्ट के हमरंग बेबी पिंक पट्टी लगी थी। साथ ही लंबी आस्तीनों के सिरे पर ट्राउज़र की रंग पर पर्पल फ्रिल लगी थी। शर्ट पर भी ड्रेस पर्पल कलर का बेहद प्यारा रेशम के धागों का डिज़ाइन कढ़ाई के फूलों की सूरत बना हुआ था। इस सूट में इसकी सुर्ख और सफ़ेद खुलती शहाबी रंगत चमक रही थी। यशब ने तय नहीं कर पा रहा था कि सूट का कलर ज़्यादा गुलाबी था या रुफ़ाया का। वो इस रंग में बिना मेकअप के भी एक खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। वो दिल में तस्लीम कर चुका था कि रुफ़ाया महब अगर अपनी खूबसूरती पर घमंड करती थी, तो वाक़ई उसका बेदाग हुस्न उसके लायक था कि उस पर इतराया जाए। यशब गहरी निगाहों से उसे तकते हुए इसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि मगर इसी वक़्त दरवाज़े पर दस्तक हुई थी और वो बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर रुफ़ाया की तरफ उछालते हुए दरवाज़ा खोलने चला गया था। जबकि यशब के पलटते ही रुफ़ाया ने दुपट्टा एक तरफ फेंक कर तीर की सी तेज़ी से बेड पर पड़े यशब की गन उठा ली थी, जिसे अभी तैयार होने के दौरान यशब ने बेड पर रखा था और बाथरूम से बाहर आते ही रुफ़ाया की नज़र इस गन पर पड़ चुकी थी।
तभी उसने मौका से फ़ायदा उठाया था। गन उठाते ही वो बर्क़ रफ़्तार से यशफ़ की तरफ बढ़ी थी, जो मुड़ने के बावजूद भी उसकी एक-एक हरकत से वाक़िफ़ था। अभी के लिए इतना ही, आज की एपिसोड यहीं पर ही इख्तिताम पज़ीर होती हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और बहुत से नॉवेल्स हम लोग नए वाले जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा और देखिएगा कि कैसा चलता है। हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। आगे और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग नावल आने वाले हैं, और उसकी झलकियाँ हम लोग ज़रूर आपको दिखाएँगे, ताकि आप लोगों को फिर अंदाज़ा हो जाए, और आप हमारे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और बेल आइकन को भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी नावल्स आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। क्योंकि किसी टाइम पे ये फ़ेसबुक के ऊपर भी हम लोग पोस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।